ریاستی ہائی کورٹ کی ایک ڈویژن بینچ نے جو چیف جسٹس ہما کوہلی اور جسٹس وجے سن ریڈی پر مشتمل تھی تمام خانگی تعلیم اداروں سے کہا کہ وہ صرف ٹیوشن فیس وصول کریں۔ اولیاء طلباء کی طرف سے داخل کردہ ایک درخواست پر عدالت نے یہ حکم جاری کیا۔ عدالت نے ریاستی حکومت کو بھی ہدایت دی کہ وہ تمام خانگی تعلیمی اداروں کو اس کے لیے پابند کریں، نیز اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ 1 فروری سے اسکولوں کی دوبارہ کشادگی پر کوئی زائد فیس وصول نہ کی جائے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کے طرف سے 2021 کا پہلا جاب کنیکٹ میلہ شروع ہوا۔ اس میں ہمارے ڈی سی پی نارتھ زون کلمیشور صاحب کی طرف سے اور ان کے پورے آفیسر، خاص کر کے انسپیکٹر مدھوکر سوامی، پورے اے سی پیز، ایڈیشنل ڈی سی پیز مل کر ٹی ایم آئی کمپنی کے طرف سے باقی سبھی کمپنیز کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر جاب اپرچونیٹیز کا موقع دینا ہمارے سبھی ینگ بوائز اینڈ گرلز کو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حیدرآباد سٹی پولیس کے طرف سے پچھلے 4-5 سالوں میں جاب کنیکٹ کے تحت لگ بھگ ہر سال 2 سے 2.5 ہزار لوگوں کو نوکری ملتی ہے، اور ابھی اس بار آج بھی جو رسپانس ہے اس کے تحت ہم لوگ سبھی اسٹوڈنٹس کو ٹوکن دیں گے، کوپن دیں گے، اور اس ٹوکن کو ہم لوگ نیکسٹ سیٹرڈے اور آنے والے سیٹرڈے میں بھی اس کو پروگرام کریں گے، جس سے کہ میکسیمم سیٹسفیکشن لوگوں کو ہو۔ اس اوکیزن پہ ایک بار پھر ہم حیدرآباد سٹی پولیس کے طرف سے ٹی ایم آئی اینڈ آل کمپنیز کو بہت بہت دھنیواد دیتے ہیں، اور ہمارے ڈی سی پی کو ہارٹی کنگریچولیشن۔ تھینک یو۔ تمل ناڈو کے ہستور میں جمعے کو مدھوت فائنانس کی ایک شاخ میں ڈکیتی میں ملوث 7 رکنی ٹولی کو حیدرآباد کے مضافاتی علاقے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کمشنر پولیس وی سی سجنا نے میڈیا کو بتایا کہ 7 رکنی ٹولی نے دن دہاڑے 25 کلو طلائی زیورات اور نقد رقم کا سرقہ کر لیا تھا۔ یہ ٹولی بہار سے ہوتے ہوئے جھارکھنڈ فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹولی نے جمعے کو انجام دی گئی ڈکیتی کے دوران مدھوت فائنانس کارپوریشن کے 3 ملازمین کو یرغ عمل بھی بنا لیا تھا اور آفس میں توڑ پھوڑ بھی کی تھی۔ ملک پیٹ کے مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے اعظم پورہ ڈویژن کے ترقیاتی کاموں سے متعلق ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے تمام کاموں کی جلد سے جلد تکمیل کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں نمائندہ کارپوریٹر محمد ابرار، جی ایم سی، واٹر ورکس، برقی بورڈ کے عہدیداروں کے علاوہ مجلسی قائدین بھی شریک تھے۔ السلام علیکم۔ آج اعظم پورہ AIMIM آفس پر جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب نے یہاں پر ایک ریویو میٹنگ لی ہے، جس میں GHMC، واٹر ورکس، الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے تمام آفیسر موجود تھے۔ یہ ریویو میٹنگ میں یہ دیکھا گیا کہ کتنے کام سینکشنز ہیں، کتنے کام چل رہے ہیں اور کتنے کام پینڈنگس ہے۔ جو بھی کام پینڈنگ ہے، احمد بلالہ صاحب نے فوری تمام آفیسروں کو یہ ہدایت دی ہے کہ جو کام پینڈنگ ہے اس کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے، تاکہ نئے کام کے جو سینکشنز لینا ہے، جیسے کہ VDCC روڈز ہے، سیوریج لائنز ہے، پائپ لائنز ہے اور کمیونٹی ہالز ہے، ان تمام کے اوپر نئے سینکشنز لینا باقی ہے۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین اپنی نمائندگی پر ان کاموں کا سینکشن بھی لے گی، اور یہ کاموں کو مکمل کیے بعد یہ کوشش کرے گی کہ جلد سے جلد وہ تمام کام بھی مکمل کیے جائیں۔ شکریہ۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے جنرل مینیجر کو راج بھاشا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ ٹاؤن آفیشل لینگویج امپلیمنٹیشن کمیٹی کی طرف سے منعقدہ تقریب میں جنرل مینیجر ساؤتھ سینٹرل ریلوے کی ستائش کی گئی، جنہوں نے اپنے زون میں ہندی کو فروغ دینے میں نمایاں رول ادا کیا۔ ریاست میں SSC کے امتحانات کا 17 مئی سے آغاز ہوگا، جو 26 مئی تک جاری رہیں گے۔ اسپیشل چیف سیکرٹری محکمہ تعلیم سیتا رام چندرن نے بتایا کہ حکومت سال 2020-21 کے تعلیمی کیلنڈر کو منظوری دے دی ہے۔ چنانچہ 9ویں اور 10ویں جماعت کی کلاسز کا 1 فروری سے آغاز ہوگا، جو 19 دن کام کریں گے۔ 26 مئی سے اسکول بند ہو جائیں گے اور دوبارہ 23 جون کو کشادگی عمل میں آئے گی۔ انہوں نے بتایا کہ SSC کے امتحانات کے صرف 6 پرچے ہوں گے۔ حیدرآباد میں اسکول صبح 9:30 بجے سے شام 4:45 بجے تک جاری رہیں گے۔ البتہ شہر میں 10ویں جماعت کے لیے آن لائن کلاسز 10 سے 11 بجے اور 9ویں جماعت کے لیے شام 4 بجے سے 5 بجے ہوں گے۔ اسکولوں میں طلباء کے درمیان سماجی فاصلے کی برقراری اور انہیں صاف ستھرا رکھنے کی خصوصی ہدایت دی گئی ہے۔
रैन बाजार के एडिशनल इंस्पेक्टर मोहम्मद अमजद अली ने जुमे की रात को चंचलगढ़ा जूनियर कॉलेज के पास खुसूसी चेकिंग की मुहिम की निगरानी की। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों, भयानक साइलेंसर वाली गाड़ियों को पकड़कर उन्हें चालान किया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी पुलिस की ऐसी मुहिम जारी है और इम्कान है कि ये मुहिम आइंदा दिनों में शिद्दत इख्तियार करेगी। पोंजी स्कीम की मुलजिमा और हीरा ग्रुप की सीईओ नोहरा शेख ने कहा है कि वो अपने तमाम सरमायादारों को रकम वापस कर देंगी और सुप्रीम कोर्ट की शराइत की तकमील करने की भरपूर कोशिश करेगी। यहाँ बताना जरूरी होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 6 हफ्ते की अबूरी जमानत पर रिहा होने के बाद जुमे की रात को मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए नोहरा शेख ने कहा कि वो अपने तमाम सरमायाकारों और कंपनी का स्टाफ का शुक्रिया अदा करती हैं जिन्होंने गुज़श्ता 2 साल के दौरान जारी कानूनी लड़ाई में उनका साथ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं ये मैसेज जो है थोड़े वक्त में जो मिला वक्त मुझे, मेरे सारे लोगों को ये मैसेज इंशाअल्लाह देना चाहती हूँ कि अल्लाह की रहमत से और अल्लाह के फजल व करम से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके थ्रू अल्लाह ने आज मुझे जुमा के दिन अल्हम्दुलिल्लाह रिलीज किया और मैं अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करती हूँ। और उसके बाद आप सब तमाम मेंबरान जो मेरे साथ खड़े रहे, आज तक भी खड़े हैं, और मेरे सारे स्टाफ और एमई और डीएसए और जो भी मेरे जितने भी कंपनी के जो काम करने वाले थे, और उन सब का सपोर्ट, जो सपोर्ट करने वाले थे और जुबानी सपोर्ट करने वाले और माली सपोर्ट करने वाले और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की जो सपोर्ट करने वाले थे, तो उन सपोर्टर के सारी जीत अल्लाह का फजल है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुई है। और 2 साल तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है 2 साल से ज्यादा मुद्दत हुई हमें आजमाया और देखा क्या हम इस बात को कबूल करते हैं कि वो जब तंगी भी ला सकता है, तकलीफ भी ला सकता है, तो हम उस हालत में कैसे रहेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि जो जो इल्जाम हमारी कंपनी को लगाते थे और जो जो इल्जाम हमारे हीरा ग्रुप के ऊपर लगाते थे, वो सब सुप्रीम कोर्ट में जो है अल्लाह के फजल से जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उन सब को जो है ये कर दिया गया। और अल्लाह के फजल से जो है मैं ये मैसेज आपको इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आप सब तड़प रहे होंगे। मैंने सुना कि आप सब जेल के सामने जो है आकर 3 दिन से खड़े रहे थे और आप सबको बहुत तकलीफ हुई होंगी। आप वो केस लाए थे और खुशियां देने के लिए, मुबारकबादी देने के लिए मैं भी तड़प रही थी, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मगर आपसे मैं मुलाकात नहीं कर सकी। मगर इसलिए मैं दिल में जो है बहुत ही ज्यादा ये हो रहा था, बस मुझे थोड़ा मौका मिला तो मैंने सोचा कि मैं आपको जो है एक मैसेज भेजूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के फजल से मैं बहुत ही अच्छी हूँ और आप सब अच्छे रहेंगे, मैं अल्लाह की जात से उम्मीद रखती हूँ। और इंशाअल्लाह आपकी साथदारी, आपका सब्र और आपका पेशेंस मेरी बहुत बड़ी कामयाबी मिली और हम सब कामयाब हुए आज माशाअल्लाह। जो भी हीरा ग्रुप का एक एक बंदा है वो अल्लाह के फजलो करम से जो है कामयाब हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ हमारे लिए प्रोसीजर्स बताए ही माशाअल्लाह, तो वो प्रोसीजर्स को जो है अल्लाह के फजल से हम फॉलो हो जाएंगे और मैं उसके लिए पूरा 100% इंशाअल्लाह कोशिश करूंगी कि वो प्रोसीजर्स को फॉलो हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से 2 साल से, जब से मैं अंदर थी, अल्लाह से मैं एक दुआ करती थी कि ऐ अल्लाह, मैं अमानतदार हूँ और मैं कोई चीजें तुझे बता नहीं सकती, बस मेरा दिल तुझे मैं बता सकती हूँ कि मेरे दिल में क्या है। और मेरे दिल में ये है कि मैं हर किसी का एक एक अमानत में अदा करूँ, अगर जिसको भी लेना देना है। बस आप भी मेरा साथ रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हुई और अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और हमारी कंपनी वापस से स्टार्ट करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने अल्लाह के फजल से जो है इजाजत दी, हमारी तिजारत को शुरू करने के लिए इजाजत दी और क्लियरली कह दिया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह के ये तिजारत है, तो इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इसमें जो भी साथ दिए हैं, जो भी स्ट्रांग पिलर बन के खड़े हैं, हम उनका बहुत ही बड़े जो है अल्लाह के बाद शुक्र अदा करती हूँ मैं अल्लाह के फजलो करम से। और मैं जो है ज्यादा इस वक्त में जो है आपको कुछ बता नहीं सकती, और इंशाअल्लाह जो प्रोसीजर्स थोड़े हैं वो खत्म होने के बाद मैं जरूर से जरूर जो है सारे जो भी कंपनी के एक्टिविटीज होंगे मैं अपडेट करूंगी, और मैं आप सबसे मुलाकात करूंगी इंशाअल्लाह, आजादी के साथ मुलाकात करूंगी और ऑफिस में मुलाकात करूंगी इंशाअल्लाह। मुंबई के ऑफिस में या हैदराबाद के ऑफिस में जो भी हमारे ऑफिस हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं जरूर से मुलाकात करूंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि इंशाअल्लाह जो भी जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सारे काम जो है मैं जल्द से जल्द जो है कि अदा करूं इंशाअल्लाह। और उसके बाद जो मेरे साथ रहने वाले और साथ देने वाले, मैं हमेशा उनके साथ हूँ, और मेरा आखिरी वक्त तक, और मेरे आखिरी जो कस्टमर होगा जिसको भी अगर एक पैसा भी मुझे देना है तो मैं उसको अदा करने के लिए इंशाअल्लाह पूरी 100% कोशिश करूंगी। और इंशाअल्लाह मैं सबको यही बात कहना चाहती हूँ, आप सब दुआओं में याद रखिए और दुआ करे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो कामयाबी दिया है उसके लिए सजदा शुक्र अदा करे, अल्लाह का एहसान माने और अल्लाह का शुक्र अदा करे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला बसवराज बोम्मई ने शिवमोगा में जुमेरात को एक क्रशर फैक्ट्री में हुए धमाके में 6 अफराद की हलाकत की तौसीक की। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा मकाम वाक़ा का मुआयना करेंगे और अहदेदारों से इस सिलसिले में बातचीत करेंगे। उन्होंने बताया कि मलबे की सफाई का काम बड़ी तेजी के साथ जारी है। पुलिस ने क्रशर के मालिक और पत्थर फोड़ने के लिए डायनामाइट सरबराह करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। चीफ मिनिस्टर ने पहले ही मुतासरीन के विरसा के लिए फीकस 5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शुमाल मशरिकी इलाके की हमाजती तरक्की के जरिए आत्मनिर्भर भारत का ख्वाब पूरा हो सकता है। आसाम के शिवासागर में एक जबरदस्त इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में शुमाल मशरिकी इलाके में कई तरक्याती काम शुरू किए गए। उन्होंने कहा कि आसाम आज पूरे इलाकों से जुड़ चुका है और उसके पड़ोसी ममालिक बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार को भी फायदा मिला है। वज़ीर-ए-आज़म ने आसाम में 1 लाख से जायद बेघर अफराद में पट्टेजात तस्लीम करने के प्रोग्राम का इफ्तिताह भी किया। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में जबरदस्त मुजाहरा करते हुए देखा गया, इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले 2 टेस्ट मैचेस के खिलाड़ी की हैसियत से मुंतखब किया गया है। इसी दौरान हार्दिक पांड्या ने, जिनके वालिद का गुज़िश्ते हफ्ते ही देहांत हो गया, अपने वालिद को याद करते हुए गुलोगीर हो गए। उन्होंने कहा कि उनके वालिद की मोहब्बत उनके दिल में हमेशा रहेगी और वो कभी भी अपने वालिद को फरामोश नहीं करेंगे। मुल्क में कारों की बड़ी कंपनी आनंद महिंद्रा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए टेस्ट में शानदार मुजाहरा करने वाले 6 खिलाड़ियों को नई SUV तोहफे में देने का ऐलान किया है। इन खिलाड़ियों में मोहम्मद सिराज, T नटराजन, शुभम गिल, वाशिंगटन सुंदर, शरदुल ठाकुर और नवदीप सैनी शामिल हैं। वादी महमूद राजेंद्र नगर की मस्जिद मुस्तफ़ा में खवातीन के लिए एक जिम का इफ्तिताह अमल में आया। मुल्क में पहले मरतबा होगा कि मस्जिद की तरफ से कोई जिम कायम किया गया हो। मस्जिद कमेटी के एक जिम्मेदार ने बताया कि मुस्लिम खवातीन के मुतादिद अमराज का शिकार होने और सेहत से मुतालिक उनकी लाशऊरी को मलूज रखते हुए ये जिम कायम किया गया है। बताया जाता है कि एक अमरीकी NGO ने इस जिम के क़याम के लिए फंड फराहम किया है। नामपल्ली की सेशन कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की साबिक वजीर भूमि अकेला प्रिया को जमानत दे दी। चुनाचे हफ्ते को आज तंचोड़ा जेल से उनकी रिहाई अमल में आई। जेल के पास उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद जमा थी। अदालत ने प्रिया के शौहर भार्गव राम की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। अकेला प्रिया और उसके दूसरे साथियों को 5 जनवरी को बोयनपल्ली से 3 अफराद के अगवा के केस में गिरफ्तार किया गया था। सिटी आर्म रिजर्व पुलिस के कांस्टेबल को एक 27 साल खातून को धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। इंस्पेक्टर LB नगर V अशोक रेड्डी ने बताया कि अभिलेष ने नागौल की रहने वाली एक लड़की के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम कर लिए थे और उसे शादी का वादा करके मुनरिफ हो गया था। मिडसेल डिस्ट्रिक्ट BJP के सदर T हरीश रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का माशी तौर पर कमजोर तबके को 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने का ऐलान कोई नया नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर नरेंद्र मोदी ने 3 साल कबल ही ऐसे मंसूबे को खतियत दी थी। हरीश रेड्डी ने कहा कि दुबक असम्बली
और जेएसएमसी के इंतखाबात में हारने के बाद केसीआर अब होश के नाखून ले रहे हैं। वरंगल के रुकने पार्लियामेंट पी दयाकर ने भोपालपल्ली में कानून साज काउंसिल के ग्रेजुएट हलके के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से अपील की कि वो पी राजेश्वर रेड्डी को इस हलके से दोबारा मुंतखब करे। मकामी रुकने असम्बली जी वेंकट रमना रेड्डी और दूसरों ने भी एक जलसे से खिताब किया। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि मुल्क में किसानों को वो मकाम नहीं मिला जिसके वो मुस्तहिक हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उनकी फलाह बहबूद का बेड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ज़राअत के शोबे पर सालाना 35,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ఉద్యోగం ఉన్నది అమ్మాయి నియమంటే ఇచ్చేటోళ్ళు కాదు. 20 ఎకరాల పట్టేదారునాడు ఆయనకే పిల్లనిస్తామన్నారు, 30 ఎకరాల పట్టేదారునాడు పిల్లనిస్తామన్నారు. కానీ ఇవాళ ఏమైంది? రాను రాను అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగమైనా చాలు అమ్మాయిని ఇస్తామనే పరిస్థితి వచ్చింది. కారణం ఏంటంటే వ్యవసాయం అనేది దెబ్బతింటూ వచ్చింది. పాలకులు వ్యవసాయాన్ని చిన్నచూపు చూసినారు. గతంలో కొంతమంది ముఖ్యమంత్రులు వ్యవసాయం దండగా అన్నారు. కరెంట్ అనేది 6 గంటలు 7 గంటల కరెంటు కూడా వచ్చేది కాదు రైతుల కోసం. చాలా ఇబ్బందులు ఉండేటి. కాలం మీద ఆధారపడి, కరెంటు మీద ఆధారపడి, మార్కెట్ మీద ఆధారపడి రైతు పరిస్థితులు ఉండేటి. కానీ ఈరోజు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కాలంతో కరెంటుతో నిమిత్తం లేకుండా 2 పంటలు పండించే రోజు ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చింది. 1 కోటి ఎకరాల మాగాణిగా ఇవాళ తెలంగాణను మార్చడంలో మన ముఖ్యమంత్రి గారి కృషి వెలకట్టలేనటువంటి కృషి ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు చేసినారు.